Honey, the only insect derived food, holds a significant importance in the Indian culture. It is a known fact that it helps to boost immunity, is used in medicinal purposes, and improves heart rate and function. According to honey export data of 21-22, India exported precisely 75,000 millitons of honey, which created a revenue of $163 million. Isn't it astonishing? To our delight, we have with us today Mr. Prakash Kejriwal, who's the managing director of Kejriwal Group. The group is one of the oldest exporters of honey from India. The group is known to help beekeepers and the people engaged in the honey production and is the first to be certified as True Source honey exporter. With him here today, we'll understand how the Indian honey industry market is growing and evolving with time and age. We'll also understand how the consumer insights and behavior are changing with passing time. He'll also help us understand the role of technology in the honey industry today and how adulteration is coming up as a prominent challenge in this industry. We'll also understand how nature's nectar places itself among all the above questions while still standing out in the market. So वेलकम टू ड्रीम इट एक ऐसा शो है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है हमारी ऑडियंसेस को. नाउ दैट यू आर हियर, आई रियली वांट टू आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इंडियन हनी इंडस्ट्री. I think it's estimated at 23 to 2400 crores and it's growing at a rate of 8 to 10% CAGR. Can you help me validate these numbers? और मैं पूरा ये मार्केट, ये पूरी हनी इंडस्ट्री को आपके थ्रू समझना चाहूँगा. Thank you first of all for having me here. Yes, the Indian honey industry is estimated as per the last figures around about 23 to 2500 crores and is growing at a CAGR of 8 to 10% year on year. This is basically fueled by the fact that the new Indian consumer, the customer has become health conscious and we are all looking for a healthier option to sugar. And honey is the first known natural food to mankind where, it's a complete food in itself, full of nutrients, vitamins, and all the essential minerals that we need to sustain our body. And that's why this market in India is growing year on year. And we estimate it to be around about 3,500 crores in the next 4 to 5 years. Oh, that's amazing. And it's still, I would say in the worldwide situation, India is still in a nascent stage where we have started to look at honey as a food just now. अब बचपन की बात है, I remember 90s में जब ऐड आते थे तो बच्चन साहब आया करते थे ऐड में, राइट, दिखाने के लिए या उससे पहले मम्मी आती थी घर में ऐड दिखाने कि गले में खिचखिचा सर्दियों में तो आदमी ने 1 चम्मच हनी खा लिया. बिल्कुल. अब उसके बाद बच्चन साहब आने लग गए जो पराठे में रोल करके खाते हैं और अब एक्ट्रेसेस आ रही हैं जो दिखाते हैं हाउ हनी इज मोस्ट न्यूट्रिशनल and healthy for you. Right. So it is becoming a food habit now. And as the population of India is increasing and we have a very young population, educated population, I only see the growth of this sector increase year on year for at least the next 10 to 15 years. But sir, you mentioned that India is at a very nascent stage. मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि India is also one of the biggest exporter. Yeah. And if we go back in history, हम देखते हैं शुरू हुआ था 8,000 टन से, अभी 135,000 टन है. Yeah. What were the key metrics for this big growth? It's a very strange phenomena. जैसे honey in our Ayurveda is also very well recognized. Of course. It is one of the best means to consume all your medicines and Ayurvedic herbs. But over the years हम ये भूल गए थे. In 1996 when we started export of honey, इंडिया की टोटल प्रोडक्शन 8,000 टन थी. उसका रीज़न ये था दैट people were only using honey as a medicine. The biggest packer at that time was only packing 2,000 tons. And you will not believe me, that at that time the price of sugar was more than the price of honey in the wholesale market. चीनी बिकती थी 18 रुपए किलो और शहद हम खरीदते थे 14 रुपए किलो. And over the years when export started, beekeepers started to earn more money. We were able to establish Indian honey in the international markets. उस टाइम तक कोई इंडियन हनी जानता नहीं था. जैसे जैसे हनी की डिमांड एक्सपोर्ट में बढ़ती रही, beekeepers started getting better prices, better remuneration for their hard work,
and slowly the track changed from 8,000 tons to 135,000 tons, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल फिगर है लास्ट ईयर का. इट इज प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट्स. इंडिया की 135,000 टन की पैदावार में इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड अबाउट 70 to 80,000 tons, and the domestic consumption is 50 to 60,000 tons. Wow. Which has also grown from 2,000 tons way back in 96 to 60,000 tons in 2024. अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो आज भी जो एस्टिमेटेड है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ हनी इन इंडिया इज जस्ट 8 to 10 grams पर पर्सन पर ईयर. सिर्फ 8 से 10 ग्राम हनी हम पर पर्सन पर ईयर खाते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जर्मनी, वहां की कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट 1 kg अ ईयर. वहां आदमी 1 किलो हनी खाता है एक साल का. सो देयर इज अ वेरी बिग गैप, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन ग्रोथ रेट और इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज फार स्ट्रॉन्गर राइट नाउ एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. सर, हमने बात की कि शुगर का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है हनी, एंड इट इज़ मच हेल्दियर. नाउ पीपल आर रियलाइजिंग, एंड नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू आयुर्वेदा, द बेसिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. नाउ दैट वी हैव रियलाइज दिस, ठीक है, हनी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इट इन आवर फूड हैबिट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी चेक करना. आई वॉज गोइंग थ्रू योर बॉटल हनी, और इसमें आपने लिखा है नो योर हनी, है ना. इसमें आपने एक QR कोड भी दिया हुआ है. किस किस टाइप के क्वालिटी चेक्स होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और एक एंड कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि उसके पास जो हनी आया है वो सेफ है, वो सही है, वो एडल्टरेटेड नहीं है? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये. हाउ डू यू नो या दैट हनी इज प्योर? आज जब आप मार्केट में जाते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, और हर ब्रांड ये कह रहा है आई एम प्योर, आई एम द बेस्ट, आई एम 100% प्योर. हाउ डज अ कंज्यूमर नो कि द सेम हनी यू कैन बाय फॉर 100 rupees, द सेम हनी यू विल बाय फॉर 300 rupees? इट इज नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज अबाउट द क्वालिटी चेक. एंड आज के दिन हनी में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज adulteration. Traditionally, we've had some checks called C3, C4 sugars, जो मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड किया जाता है. हमारा FSSAI जो स्टैंडर्ड है वो भी C3, C4 चेक करता है. C3, C4 शुगर्स इज, जैसे पहले हनी में मिलावट होती थी, जो हम कहते हैं गन्ने जो चीनी है, सिंपल शुगर्स लाइक केन एंड कॉर्न, मतलब गन्ने से या भुट्टे का जो कॉर्न का होता है सिरप, उससे मिलावट होती थी. तो वो एक EARMS टेस्ट होता है विच इज स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, हर जगह होता है, उसमें पकड़ में आ जाता था. धीरे धीरे जो अडल्ट्रेशन करते हैं वो स्मार्ट होते गए. उन्होंने बोला ये तो बड़ा आसान से पकड़ में आ रहा है, लेट अस चेंज द शुगर प्रोफाइल. तो उन्होंने शुगर प्रोफाइल चेंज करके दे मूव टू समथिंग कॉल्ड C3 शुगर्स, विच इज बेसिकली मेड आउट ऑफ राइस सिरप. वो C4 में पकड़ में नहीं आता था, तो काफ़ी सालों तक राइस सिरप की मिलावट चली. धीरे धीरे लैब वालों ने उसको भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उसी में एक अटैचमेंट और लगी मशीन में, ये LCRMS बन गया जिसमें राइस सिरप पकड़ में आ गया था. सो दीज आर यू नो स्पेसिफिक ट्रेस मार्कर्स, जो हम कहते हैं स्पेसिफिक मार्कर्स, से हम केन, कॉर्न, राइस, टैपियोका, अलग अलग देशों में जो चीज़ सस्ती मिलती है उस तरीके से अडल्ट्रेशन होता है. बट धीरे धीरे एज वी आर मूविंग ऑन, अडल्ट्रेशन वो करने वाले ज़्यादा आगे भागते हैं. देखो, हरदम आपने कभी देखा है कि पुलिस के पीछे चोर भाग रही है? चोर के पीछे ही पुलिस भागती है. तो चोर हरदम आगे निकल रहा होता है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है. नाउ देयर इज अ न्यू टेस्ट कॉल्ड NMR, which is the nuclear magnetic resonance. Okay. Which is a non-specific trace marker test, जहां पर वो C3 या C4 शुगर्स को नहीं पकड़ रहा. वहां ये देख रहा है कि हनी की एक प्रोफाइल है, which they have a database of thousands of honeys from across the world. आपका सैंपल जब जाता है, उस ग्राफ पे उसको चेक करते हैं. दे हैव अराउंड अबाउट 160 वर्ल्ड पैरामीटर्स, कि एक हनी का जो प्रोफाइल है, ग्राफ है, आपका सैंपल उसमें मीट हो रहा है कि नहीं. ऑन द होल अगर NMR कहता है कि अगर आपके इस ग्राफ पे हनी मार्क हो रहा है, देन इट इज प्योर. अदरवाइज इफ देयर आर मेजर डिविएशंस, इट इज एबल टू डिटेक्ट दैट दिस हनी इज इम्प्योर, एंड दैट इज द टेस्ट दैट वी आर गिविंग. And it's not only about what we are giving, this is what the consumer deserves. There's a reason why people are buying honey over sugar. And until unless we are able to assure the consumer that this is pure honey, you are doing a disservice to your consumer. In our brand, we assure that you are not only getting the standard C3, C4, but also an NMR test, जो हमारे बॉटल के पीछे QR कोड है.
आप उसको अगर स्कैन करेंगे तो फॉर एवरी बैच वी गेट अ फुल NMR टेस्ट डन इन अ जर्मन लैब, और आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं दैट C3 C4 के साथ दिस इज ऑल्सो NMR पास। सर विथ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, ऑफकोर्स एडल्टरेशन का तरीका भी इवॉल्व हुआ होगा। आपने जैसे बोला पहले केन एंड कॉर्न सिरप होते थे, देन वी वेंट टू राइस सिरप। आज के टाइम पे सबसे कॉमन कंपोनेंट कौन सा देखा जाता है? राइस सिरप आज भी है। ओके जैसे जैसे अडल्ट्रेशन पकड़ में आने लग गई, जो राइस सिरप बनाने वाले हैं, सी बेसिकली दिस इज नॉट कि राइस सिरप का आपने स्टार्च अलग किया और उसको कन्वर्ट कर दिया। दीज आर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ओके ये एंजाइम से कन्वर्ट किया जाता है, तो नए नए एंजाइम ट्राई करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। देयर आर अदर टाइप ऑफ अडल्ट्रेंट्स नाउ लाइक टैपियोका, देयर इज बीटरूट सिरप जो पकड़ में नहीं आ पाता इतने आसानी से, एंड दैट इज व्हाई वी नीड समथिंग लाइक एन NMR, एंड दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज नाउ हेल्पिंग अस. The labs are also, modifying and adapting much faster than what they did years ago. I remember C4 हमने जाके देखा था 2003-4 में। उससे पहले 10 साल तक तो हमने हनी में कभी अडल्ट्रेशन सुना ही नहीं था। ऑफ कोर्स जब डिमांड ही नहीं थी तो अडल्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। राइट राइट So this is what in the food industry called EMA, which is economically motivated adulteration. राइट जहां कोई मुनाफा ज्यादा कमाने के चक्कर में आपको गलत चीज दे रहा है। एंड इट इज नॉट ओनली इन हनी, इट्स नॉट दैट कि हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं हो रहा। इट इज डन इन मोस्ट फूड प्रोडक्ट्स, इट इज एंड इट इज एक्सट्रीमली सैड टू सी। सर जैसे आपने तो यहाँ पे एक QR कोड दिया है, NMR टेस्ट दिया है, C3 C4 दिया है, इज इट प्रोमिनेंट विद अदर हनी ब्रांड्स एज वेल? I would not like to comment too much on that, but I have not seen much. Most of the brands don't even talk about NMR. कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी CSE की, where they had checked top 10-15 brands in India, where only 2 or 3 brands passed NMR. आज भी कुछ more brands are promising NMR, but I'm not sure that they're doing it for every batch. The reason for me to ask this question was because end consumer क्या रिसीव कर रहा है और क्या खा रहा है, उसको वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है। Unfortunately, honey is one of those products in India जहां पर हनी आदमी खरीदते हुए भी ना, कुछ वो एक ब्रांड सालों से खरीद रहा है, वो खरीद भी रहा है लेकिन ही इज अनश्योर कि वो सही है कि नहीं। दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कहता नहीं मेरे को हनी खाना तो है बट आई डोंट नो ऑफ एनी अदर ब्रांड जो ठीक होगा, सो माइट एज वेल कीप ईटिंग व्हाट आई हैव बीन ईटिंग फॉर 20 years. आज के दिन कंज्यूमरिज्म एज यू सेड ऐसा बढ़ गया है दैट पीपल नीड टू बी अवेयर. डोंट गो बाय व्हाट यू हैव बीन डूइंग. एग्जैक्टली रीड. आज इंफॉर्मेशन आती है, रीड अबाउट अ प्रोडक्ट, स्पेशली अ प्रोडक्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ योर हेल्थ. इट इज़ नॉट कि आप एक नॉर्मल सीरियल खा रहे हो या कोई आप फल सब्जी खा रहे हो जो नॉर्मल आप थोक के भाव में खरीद रहे हो. एक बॉटल आपकी आधा या 1 किलो की हनी आपके 1 महीने भर तक रहेगी घर में. अगर वो इतनी छोटी चीज़ है बट इट इज़ अ हाई वैल्यू आइटम, इट डिजर्व्स 5 minutes ऑफ रीडिंग. आप उसके बारे में पढ़िए, समझिए व्हाट द ब्रांड इज गिविंग, व्हाट द ब्रांड इज ऑफरिंग, एंड मेक अ कॉन्शियस डिसीजन. सर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हेल्थ इन डिटेल. या मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहूँगा. हनी एज अ हेल्थ प्रोडक्ट इज वॉट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. एज आई सेड अर्लियर कि हनी इज़ द कंप्लीट फूड. अगर हम पुराने शास्त्रों पे भी जाते हैं, हमारे हिंदू कल्चर में बोला जाता था अमृत. सो बेसिकली हनी अमृत और कुछ नहीं है, शहद ही है. अगर हम इस्लाम पे जाएं तो उसको असल बोलते हैं. असल मतलब रियल, रियल यस, प्योरिटी. और अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं इसको डिवाइन नेक्टर बोलते हैं. सो अगर हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों ने मान रखा है दैट हनी इज द कंप्लीट फूड, सो दैट इज हाउ हनी शुड बी. सो आज हम जितने भी हाउस होल्ड में जाते हैं या हम जो बातें करते हैं कि वाई पीपल आर शिफ्टिंग ओवर फ्रॉम शुगर टू हनी, इट इज बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स. राइट. But unfortunately, health you will only get if it is pure honey. आज के दिन जो अडल्ट्रेशंस हो रही हैं, पुराने एज आई सेड C3 C4 शुगर्स हो रहे थे, आज के दिन को अडल्ट्रेशन कर रहा है, इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन, वो आपकी हेल्थ की भी चोरी कर रहा है. आज आप समझिए आप किसी बेनिफिट के लिए खा रहे हैं, लेकिन आप शायद समझ करके अगर चीनी 1 की जगह 3 चम्मच खा रहे हैं, वो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है. अगर वो स्टार्च बेस्ड है, सपोज राइस बेस्ड है, तो आप शहद ही नहीं, आप यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग स्टार्च इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म. That is wrong. That is what our fight is against, and that is what it should be stopped. I'll just give you another example. पुराने ज़माने में जब ये सारे टेस्ट नहीं होते थे and you didn't have artificial sugars, marathon runners भागने से पहले they used to have a shot of honey. In fact वो अपने साथ एक छोटी बॉटल लेके भागते थे because over a period of 40 kilometers they needed energy. Right. And pure honey is the cleanest form of energy, instant energy that you can get for a sustained period of time.
honey is basically natural sugar. It is simple fructose and glucose in most parts, which is easy to digest and gives you sustained energy over a long period of time. Honey का glycemic index low है, so it will give you energy, but it is a sustained energy over a long period of time. There are a lot of health benefits. See, it's an antioxidant. You know, antibacterial properties, Right. antioxidant properties, Right. like the number of benefits you get out of honey doesn't have to be mentioned again and again. राइट राइट मैं ये पूछना चाहूंगा कि इफ हनी का इतना ज्यादा बेनिफिट है तो जो जिम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, और क्या वो गर्मियों के दौरान भी बेनिफिशियल है कि नहीं, इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. एज ए सेड, सी हनी गिव्स यू एनर्जी. तो आज के दिन आप देखोगे जिम में जाने वाले काफी लोग ना कैफीन शॉट्स ले रहे हैं. Right. दे आर हैविंग आर्टिफिशियल शॉट्स बिफोर दे गो फॉर जिमिंग. रिप्लेस इट विथ हनी. एज सिंपल एज दैट. यू नो, आप जिम के पहले, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, सी हनी इज एन एक्सीलेंट फॉर्म टू हाइड्रेट योरसेल्फ because it has sustained energy levels and you have it with water. अब जैसे गर्मियों की आपने बात करी, बड़ी अच्छी बात है. हमारे यहाँ एक मिथ है कि नो शहद का तासीर ना गर्म है, you should only have it in the winter. Right. नहीं, it is totally incorrect. Honey, as I said, is a simple sugar and sugar gives you energy. अब जैसे गर्मियाँ हैं, you know, we are going out, we dehydrate so much, we sweat, we are losing salts and minerals from our body. और घर जाते हैं, बहुत पुराने ज़माने में, अभी भी होता है, अनफॉर्चुनेटली पीपल आर चेंजिंग, वन आर्टिफिशियल शुगर, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेट्स ये पीते हैं टू गिव यू इंस्टेंट एनर्जी. वो लेकिन इंस्टेंट एनर्जी आपको स्पाइक तो मिलता है, बट विद इन हाफ एन आवर दैट एनर्जी इज ड्रेन्ड आउट. हमारे घर में तो हम शिकंजे भी पीते हैं अब तो शहद डाल के. टेस्ट बेटर, इट विल गिव यू अ गुड एनर्जी किक एंड इट विल सस्टेन दैट एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. राइट. वो आपको एनर्जी 2-3 घंटे तक महसूस होगा. एंड बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल्स, so the salt and minerals that you have lost while sweating, you are able to regain it back. Right. The energy levels are much better having honey as compared to glucose or any other such energy mixes that are available in the market. Right. One other myth is about crystallization. और ये it's I don't know whether it's a myth या ये propagate किया है, क्या है, is what I want to understand from you, sir. It is bit of both. Honey will crystallize. It is a natural phenomena. अब देखिए अलग अलग तरीके के हनी होते हैं हमारे इंडिया में. सबसे बड़ी प्रोडक्शन हमारे इंडिया की होती है मस्टर्ड की, सरसों की, शहद की. सरसों इज, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ मस्टर्ड इन आवर कंट्री. सरसों आप समझिए राइट फ्रॉम राजस्थान अप टू असम, आपका पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड गैंजेटिक बेल्ट है, हर जगह सरसों की पैदावार होती है और खपत होती है. एंड इंडिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज हनी फ्रॉम मस्टर्ड. Around about 60,000 tons of 135,000 tons is mustard honey alone. इस शहद का एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट ये निकलते ही 15 दिन में जम जाएगा. और जम नहीं जाएगा, ये आता भी मेन विंटर्स के टाइम है. ये डालडा की तरह सख्त जम जाता है. लोग देख के तो कहेंगे ये तो प्योर ही नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट यू नो प्री कंसीव नोशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारा का सारा शहद हम एक्सपोर्ट कर देते हैं. इंडिया में नहीं बिकता बिकॉज इंडियन कंज्यूमर को लिक्विड हनी चाहिए. यस, कुछ पुराने मिथ हैं, कुछ पुराने ब्रांडों ने इसको प्रोपोगेट ऐसे किया है कि अगर शहद जम गया तो वो चीनी है. कुछ साल पहले भी न्यूज़पेपर में ऐड आते थे दैट प्योरेस्ट फॉर्म लिक्विड, दे यूज्ड टू एक्चुअली प्रोपोगेट कि अगर शहद जम गया तो वो चीनी है, जबकि इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. शहद, नेचुरल शहद जमेगा ही. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. राइट. कोई शहद 15 दिन में जमेगा, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में. कुछ ब्रांड्स इतना उसको प्रोसेस कर देते हैं कि नॉट ओनली आर दे ट्राइंग टू कीप इट लिक्विड बट दे आर आल्सो किलिंग द बेनिफिट्स ऑफ हनी. अगर आप शहद को इतना ज़्यादा गर्म कर दोगे या इतना ज़्यादा फिल्टर कर दोगे तो उसकी सारी उसकी अच्छाई आपने वैसे ही मार दी है. एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हनी इन इंडिया, लाइक वी आर बाइंग हनी राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. कश्मीर से मकाशिया और हिमालयन हनी खरीदते हैं. केरला से रबर हनी आता है जो रबर प्लांटेशन से आता है. वी आर बाइंग ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, राजस्थान से बहुत हनी आता है हमारा. मस्टर्ड का आता है, अभी धनिया का हनी आ रहा है. अच्छा. कोरिएंडर का हनी आ रहा है हमारा वहाँ से. एमपी में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी अभी धनिया का आ रहा है, मस्टर्ड आता है. यूपी ऑफ कोर्स, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आपका बिहार. अब लीची का क्रॉप आ रहा है हमारा. राइट. लीची का हनी बहुत बढ़िया आता है. इट हैज़ गॉट अ वेरी नाइस फ्रूटी फ्लोरल टोन टू इट एंड इट इज़ यूज लॉट इन बॉटलिंग. उसको हम ब्लेंड करते हैं. एंड गोइंग डाउन टू बंगाल में हमारा बहुत हनी आता है. अभी मस्टर्ड ख़त्म हुआ है, अब यूकलिप्टस आएगा, अब लीची चल रहा है.
तिल का हनी आएगा वहाँ से, ब्लैक सेसमी, and then we do all of our organic project from the Sundarban. Sundarbans, of course, is forest reserve. It is one of the most naturally organic areas in India, and right up to Assam. Assam से भी हमारा, this is a new area that has been developed. पहले असम से इतना हनी नहीं आ रहा था, लेकिन 5-7 साल से अब असम से हमारे को बहुत अच्छा मस्टर्ड का हनी आता है. Wow. So these are different varieties of honey. India has around about 18 to 19 different varieties of honey. But mostly that you will see in the market are 2 or 3 different varieties. हमारा भी एक जैसे natural blended honey आता है, एक organic honey है. Then we do 2-3 other brands, 2-3 other varieties, because a lot of these crops are so small that they are not commercially viable to launch. कि आपको कम से कम एक ऐसा शहद चाहिए जो आप साल भर लोगों को खिला सके. कोई बैच आते ही 8-10 टन है, आप लोगों को कैसे खिलाएंगे? आपका ग्रुप हेल्प करता है बी कीपर्स को भी एज वेल, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस होल जर्नी. आज के टाइम पे बी कीपर्स की क्या हालात हैं, एंड आज के टाइम पे कितने ज़रूरी हैं बी कीपर्स इंडिया में, बिकॉज ये एक फैक्ट है कि अगर कल को बीज नहीं रहीं, इवन ह्यूमन रेस विल गेट एक्सटिंग्विश्ड. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत बार क्या है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, राइट. वी डोंट टॉक अबाउट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. सी, हनी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी फैक्ट्री में बना सकते हैं. सो द रोल ऑफ बीज एंड बी कीपर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बी कीपर्स हमारे देश में एज पर लास्ट एस्टिमेट अराउंड अबाउट 2.5 लाख बी कीपर हैं. तो 2.5 लाख बी कीपर्स के साथ उनकी फैमिलियां जुड़ी हैं. इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कमर्शियल बी कीपिंग लाइक वी हैव इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पर बड़े बड़े बी कीपर्स के पास दे हैव 30-40-50 हज़ार हाइव्स. बाय हाइव्स आई मीन एपीरीज जो हम ले लेके घूमते हैं. सो बी कीपिंग इज माइग्रेटरी इन नेचर. साल में कहीं पर भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर साल भर आपको फूल मिलेंगे. सो जो हमारा बी कीपर है वो जैसे जैसे फ्लोरल पैटर्न मूव होता है, उसके साथ साथ डब्बे ले लेके मूव होता जाता है. 20 दिन एक जगह बैठेगा, फिर 25 दिन एक जगह बैठेगा. तो बिहार का बी कीपर विल कम राइट अप टिल हिमाचल, बिहार का, एंड हिमाचल का बी कीपर विल माइग्रेट राइट अप टिल एमपी. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी कीपिंग इज अ वेरी ऑनरेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर लैंडलेस फार्मर्स. हमारा देश जितना बड़ा है, अनफॉर्चुनेटली ओवर द जनरेशन जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग्स छोटी होती गई. हमारे यहाँ मैन पावर अबंडेंस है. दैट इज वन ऑफ द बिग positives for India, right? And it is a very good source of income for landless farmers. By landless farmers, I mean is आपको beekeeping करने के लिए खुद की जमीन नहीं चाहिए. आप मधुमक्खी के जो डब्बे हैं, जो एपीरीज हैं, you keep it on the मुंडेर, जो आपके बॉर्डर है right. लैंड का, फार्म के कोनों में रखते हैं. मक्खी अपना काम जाके करेगी, अपने पोलन और नेक्टर फूलों से उठा के ले आएगी. आपको उसमें कोई अपनी प्रोडक्शन कम करने की जरूरत नहीं है. On the contrary, beekeeping is known to increase pollination. Right. आपका yield per acre will increase just by keeping bees around your farm. Luckily, our government has also recognized this now. Modi ji, our honorable Prime Minister, talks about the sweet revolution. Right. जैसे पहले green revolution था, white revolution था. He talks about sweet revolution, where he envisages that, a lot of landless farmers, lot of unemployed youth, rural youth, can take up beekeeping to not only give themselves employment, but to give us a very healthy product for future generations, for our young generation. And the government of India has now inducted beekeeping as a 6th input in agriculture. So I also want to ask कि किस टाइप की बीज सबसे ज़्यादा yield देती हैं, which actually goes for the mass production of honey, या जो एक consumer में सबसे ज़्यादा available है? See, these are bees worldwide. This is a species called Apis mellifera. Okay. This is an Italian species which is used worldwide because it is the most, I would say, hardy race which has adapted to most climatic conditions and gives you best yield per hive. In India, these bees were brought in the early 80s, late 70s, early 80s, and they were indigenized by the Pusa University at that time. Right. Or sorry, not the Pusa University, by the Sona University, Punjab University. And that is the bees that is being distributed to beekeepers across India. Sir, you have been in the industry for a very long time. Yeah. I think the group has been the oldest.
And if we don't talk about your journey, the group's journey, I think ये podcast पूरा हो नहीं पाएगा. See, we've been in the food industry for almost 60 years. Our company was started by my father, and we got into the food journey in 1967. Predominantly, we were exporting a lot of food products from India, traditional food products like spices, rice, tea, and then we were very big in tropical fruit pulps. We had an Indo-USSR joint venture, and of course that collapsed with the fall of USSR. USSR. And we got into honey accidentally. 1996, I remember my father was traveling to the US trying to sell fruit pulps. We don't know so much about honey even now in India. Honey we think only as a table variety, but a lot of honey goes into ingredients. So one of our customers in the US asked my father that, do you have honey in India? उनको लगा कि आपको इंडिया से वो बॉटल्ड हनी क्यों खरीदनी है, आपको यूएस में तो अच्छा होता. बोले नहीं, वी वांट हनी इन बल्क. सो दैट इज व्हेन माय फादर केम बैक. आई हैड जस्ट फिनिश्ड स्कूल, एंड लाइक एनी गुड मारवाड़ी फैमिली बैक इन द 90s, कॉलेज और ऑफिस साथ साथ ही होता था कि भाई हफ्ते में 2-3 दिन कॉलेज चले गए, 2-3 दिन ऑफिस आ गए, ताकि योर एजुकेशन अलॉन्ग विद वर्क गोज ऑन एंड देन यू कैन चूज व्हाट यू रियली वांट टू डू. एंड बस उस टाइम कहते हैं ना, हम वो हनी वेब में ऐसे फंसे कि आज तक उसको एंजॉय कर रहे हैं. 1996 देन वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कहाँ से हम हनी सोर्स कर सकते हैं. देन वी सोर्स सम हनी फ्रॉम पंजाब, बिहार, बंगाल, एंड 1996 वी डिड आवर फर्स्ट 8 कंटेनर्स. 160 टन हमने एक्सपोर्ट किया था. एंड ओवर द ईयर्स, yes, we have grown in this. Today as a company we handle almost 15,000 tons of honey. Wow. Alone. And it's a rewarding journey. But sir, seeing the competition now, right? How is Nature Nectar different, or what makes Nature Nectar stand apart from all the other brands in the market today? आपने कहावत सुनी होगी ना कि हलवाई कभी अपनी मिठाई नहीं खाता. हम कह रहे ये ऐसी मिठाई है जो मैं रोज़ खाता हूँ और रोज़ अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ और बगैर सोचे खिला सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ सो प्योर. Again, as I said, all the brands claim that we are pure, we are the best. But we are the only company जो हर बॉटल के साथ NMR रिपोर्ट दे रही है for that particular batch. If anyone is looking for pure honey, I'm not saying look for my brand. Please be educated. Please know what is going on in the market. Give yourself 5 minutes to read about a product before you are consuming it, and look for an NMR report on every bottle. If you are looking for a pure brand, pure honey, and not only claim of NMR, look for a report for every batch. टेक्नोलॉजी पे आना चाहूँगा सर. बहुत ही तेज़ी से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है. आज के टाइम पे वी आर इन द एज ऑफ AI एज वेल. जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड टू सस्टेन and grow with the technology. Yeah. I really want to understand that how your brand has lived up to the promises pertaining to the technology. So as I said earlier, किसी honey is one product जहाँ हम कहते हैं कि जितना उसको कम छेड़ो उतना बढ़िया. It's a complete food in itself. हमारा काम होता है बेसिकली हनी को लाना, उसको टेस्ट करना, उसको फिल्टर करना, प्रोसेस करके पैक कर देना और आप तक पहुँचा देना. Right. It is no rocket science. लेकिन yes, the technology comes in testing. As I said, नए तरीके आ रहे हैं अडल्ट्रेशन करने के लिए. So we are using the best available method today to test. दूसरा, as a company, we believe in complete traceability. So we are now using technology to do a backtrack of farm to fork, right from the bottle on the table, right up to the beekeeper. Our next stage is to give you complete traceability, that with every QR code आप जब स्कैन करेंगे, हम आपको उसके साथ उस beekeeper का नाम दे देंगे जिसका उससे जो हनी उसमें पैक किया गया. Wow. So we are trying to link the producer and the consumer directly on the table. We are just a service provider. It is not my product. ये मेरी मेहनत नहीं है, ये उस beekeeper की product है जो who should be known to the consumer. Wow. So we are now reaching the end to this interview. It was an extremely in-depth discussion, but on a closing remark, I would really want you to share a few words of wisdom with our audience. Honey is something, is a word that you call your loved ones. Loved ones, yes. So we should believe in that word and the product, and you should have a product that you truly think is pure and lovely for your loved ones. Honey is not only just related to a food, but it is a whole ecosystem behind it. When I say ecosystem, you must understand that we're not only talking about farmers, beekeepers, but
also our environment as a whole. With beekeeping, you are increasing your yield, you are increasing production, you are giving employment to landless farmers, you are increasing the yield of farmers, and then you come to a product like honey, which is giving you a health benefit. Right. So it is a full ecosystem that is associated with that one spoon of honey that you consume in a day as a complete food. And that is what I want to say, that have a pure product and support your beekeepers, support the product itself. Absolutely, sir. Thank you so much. It Thank was you. pleasure Thank you so having much. you over this interview. Nice sir. being here. Thank you Thank so you. much.